So dear students, this is the first video of chapter application of integrals. In this chapter, just as you have studied in chapter on application of derivatives, use of derivatives, you have studied in various applications like finding equation of tangent, normal, finding approximate calculations or finding maxima and minima. But here we will be studying one application of integration, that is in form of finding area. So if we are given a curve y equal to fx, whose graph is like this, then if there are two ordinates, so parallel lines which are parallel lines to y-axis, so these are ordinates at x equal to a and x equal to b. This is the curve y equal to fx. Then area bounded by all these four, this x-axis, these two are all ordinates, and this is the curve. This can be shaded like this. So area bounded by x-axis y equal to fx, curve, ordinates x equal to a and x equal to b, because x equal to a is a line. This is the line x equal to a, this is the line x equal to b, which is line parallel to y-axis, is given by definite integral a to b fx dx. So this result you have to apply, and if this area is below x-axis, then you have to take modulus of this integral. So in that case you have to be careful. तो इस तरह से आपका जो ये एरिया है, एक कर्व आपके पास fx है y इक्वल टू fx और दो ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, इनको ऑर्डिनेट्स कहा जाता है, और x एक्सिस, इन चारों से मिलकर के जो ये आपका शेड एरिया बन रहा है, इसको फाइंड करने के लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल आप इवेल्युएट करेंगे a टू b fx dx. ये आपका लोअर लिमिट है, b आपका अपर लिमिट है. अगर यही आपका ऐसा फिगर बन जाता है जहाँ पे आपका जो कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये सिचुएशन आपकी ऐसे बन जाएगी, इस तरीके का एरिया हो जाएगा a टू b, ये आपका एरिया हो जाएगा. तब ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और तब उस केस में आपका जो एरिया होगा ये कितना होगा, so एरिया इज इक्वल टू, in this case shaded area is equal to mod of a to b fx dx. तो ये ध्यान रखना आपको, अगर ये एरिया x एक्सिस के नीचे आ जाता है तो a to b fx dx हो गया. मॉड लेना पड़ेगा इसको, अगर ऊपर है तो सीधे पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं आपको ज़्यादा करना है. और एक और सिचुएशन, मतलब इसमें x एक्सिस एक बाउंड्री है इस एरिया की, तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, या इसको आप y dx भी कह सकते हैं, y dx a to b, क्योंकि y ही आपका fx है, इस तरह y dx. और अगर ये सिचुएशन है जहाँ पर कर्व नीचे है x एक्सिस के, तो ये एरिया आपको मॉडुलस में लेना होगा. सपोज वी आर गिवन ए कर्व लाइक this type of curve x equal to fy, then these are abscissa x equal to y is equal to c, y equal to d. So this area which has x axis as boundary, these are abscissa y equal to c. So area bounded by y equal to c, y equal to d, x equal to fy. This graph and y axis is given by a c to d
x dy, x is fy, that is c/d fy dy. So here c and d are limits of y. और इसमें भी एक सिचुएशन आपको मिल सकती है जब ये एरिया आपका नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे अभी राइट साइड में एरिया है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में होगा तो जैसे एक्स एक्सिस के नीचे आने पर मॉड लिया गया था यहाँ पे भी मॉड हो जाएगा। तो उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। तो ये दो फॉर्मूले आपको मेनली अप्लाई करना है एक्सरसाइज में, और ऐसे जहाँ और दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा रिविजन आपका हो जाना चाहिए, जिससे क्योंकि मोस्टली जो कर्व मिलेंगे वो आपके स्ट्रेट लाइन होंगे, सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला कभी कभी मिल सकता है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं तीनों से है। तो कॉनिक सेक्शन में सर्कल जैसे पहले है आपका x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल whose center is HK, radius is R. If it is given the general form like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then for this circle center is minus g minus f and radius is square root of g square plus f square minus c. Here g is half of coefficient of x, f is half of coefficient of y, c is the constant term. Provided coefficient of x square and y square is 1. तो इस तरह से सर्कल का आपका है। सर्कल तो आपको पता ही है किस तरीके का सर्कल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉनिक आपको देखना है वो है पैराबोला। पैराबोला y square equal to 4ax is the well known formula for equation of parabola, which is the called the right hand parabola. This type of parabola, y is equal to 4ax. Generally it is written in the form of 4ax. Here f is focus with coordinate a0, vertex is here and this is the latest rectum ll dash. तो ये सब चीज़ें आपको पता है। दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला। क्योंकि आपको इक्वेशन को देख करके आपको क्लियरली आइडिया लगाना होगा कि कैसा कौन सा डायग्राम उसका बने। इस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, दिस पैराबोला इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। Diagram will be like this. So this type of diagram you will get for this. Here focus will be on this side, minus a0. Latest rectum will be like this, ll dash, x axis, y axis as usual. ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, y square equal to 4x, right handed parabola. One more case is that is x square equal to 4ay. This equation is for upward parabola. This type of upward parabola, here focus is 0a and this is the latest rectum ll dash. This is upward parabola. Equation is x square equal to 4ay. And one last case is called the downward parabola. Downward parabola given by equation x square equal to minus 4ay. So here equation will be like this. It will be downward parabola. This type of parabola. Focus is here 0 minus a, x axis, y एक्सिस एज यूजुअल। तो ये पैराबोला के अलग अलग केसेस हो गए। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फोकस इधर आ गया। लेटेस्ट सेक्टम ये है, ये इसमें लेटेस्ट सेक्टम ये है आपका। लेटेस्ट सेक्टम लाइन आपकी जो होती है, ये जो लाइन है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली लाइन होती है।
और ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, डाउनवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो मेनली ये सब आपको इक्वेशन देख करके उसका डायग्राम सही बन जाए। नेक्स्ट इज द कॉनिक इज एलिप्स। एलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। हियर a is greater than b. Here if a is greater than b means denominator of x square is larger number, then it is called this type of ellipse where major axis is a dash is major axis, bb dash is minor axis. Mainly major axis is along x axis. Flatness of ellipse is along x axis. So major axis a dash along x axis. This is the main point you have to remember about this. X O x dash, y O y dash, like this. Second form is x square upon b square, y square upon a square equal to 1. Here also a is greater than b, but here major axis is along y axis. Major axis is along y axis. तो जो एलिप्स का फ्लैटनेस है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग फ्लैटनेस है, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लैटनेस वाई एक्सिस का लॉन्ग होगी, ये होगी फ्लैटनेस। इस तरीके का डायग्राम बनेगा आपका। ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो फ्लैटनेस में लिए देखना आपको, ये पॉइंट आपका a0 माइनस a0, ये आपका 0b, दिस इज 0 माइनस b, 0 माइनस b। यहाँ पे ऐसे आपका ये आपका 0a, 0 माइनस a, b0 माइनस b0। तो ये दो फॉर्म है आपके एलिप्स के लिए। मेनली आपको ये देखना है कि a ग्रेटर देन b तो दोनों में है, मतलब x स्क्वायर के नीचे अगर बड़ी नंबर है तो वो फर्स्ट फॉर्म है, मेजर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग है, फ्लैटनेस आपका x एक्सिस का लॉन्ग होगा। और अगर y स्क्वायर के नीचे बड़ी नंबर है तो वो आपका क्या है, मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस का लॉन्ग है और फ्लैटनेस का y एक्सिस का लॉन्ग है। और एक को इसमें आप बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। A is the length of semi major axis और B इसी तरह लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। डायग्राम कैसे बनता है ये ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve, y square equal to x, and the lines x equal to 1, x equal to 1, comma x equal to 4, and the x axis and the x axis and lying in the first quadrant, and lying in the first quadrant। तो ये क्वेश्चन है आपका। पहले लोग डायग्राम बनाते हैं। पहला बोला यहाँ पर ये दिया हुआ आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है, मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं इसके लिए। ये पैराबोला हो गया और दो लाइन्स हैं आपके पास, x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ये लाइन है x इक्वल टू 1 और एक लाइन होगी x इक्वल टू 4। दोनों लाइन्स हैं आपकी जो y एक्सिस के पैरेलल होंगी।
तो आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, पहले इसको शेड करेंगे। सो एरिया इज बाउंडेड बाई दिस कर्व लाइन्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। तो एक तो कर्व है आपका, कर्व यहाँ पे भी है, कर्व यहाँ पे भी है, लाइन ये है, लाइन ये है, और x एक्सिस बाउंड्री है और लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये भी एरिया हो सकता था कि ये भी कर्व है, ये लाइन दोनों है, तो ये x एक्सिस है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया आपका आ रहा है, यही आपको फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया is equal to shaded region, shaded area is equal to y dx, limit will be from 1 to 4, 1 to 4 के बीच में। अब आप इसमें y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y is root x dx 1 to 4। now you have to integrate this, so x power 3 by 2, 2 by 3 will be constant, apply the limit 1 to 4। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने और आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 by 3, 4 पावर 3 by 2 माइनस 1 पावर 3 by 2। व्हाट इज 4 पावर 3 by 2? 4 पावर 3 by 2 you can write as 2 square power 3 by 2, 2 cancel, it is 8. So it is 2 by 3 into 8 minus 1, that is 2 into 7 by 3, that is 14 by 3 square units। इस तरह से ये आपका जो एरिया आपको फाइंड करना था वो 14 by 3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो ये क्लियर हो गया। पहले आपको डायग्राम कैसे बनाना है, इक्वेशन आइडेंटिफाई करिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के टाइप का है, राइट हैंडेड पैराबोला है, तो डायग्राम इस तरीके का बन गया। नेक्स्ट जो लाइन दी हुई है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। लाइन के बारे में भी क्लियर आपको आइडिया होना चाहिए। सर्कल पैराबोला और इसके अलावा जो लाइंस का जो चैप्टर था 11th क्लास का, लाइन को कैसे आप ड्रॉ करेंगे, लाइन की इक्वेशन को देख करके उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर इस एरिया में आपको y एक्सिस एक बाउंड्री है, x एक्सिस एक बाउंड्री है, तो y dx वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर y एक्सिस बाउंड्री होती तो x dy वाला फॉर्मूला लगता है, ये ध्यान रखना होता है। तो y x एक्सिस का बाउंड्री है तो आपको y dx 1 to 4, यहाँ पे 1x की वैल्यू, यहाँ से 4 है, तो इस तरह से y की वैल्यू रूट एक्स है, रूट एक्स को इंटीग्रेट किया, इस पावर 3 by 2, 2 by 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 by 2 से डिवाइड होगा, 2 by 3 आ जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 by 3, 4 पावर 3 by 2 माइनस 1 पावर 3 by 2, 4 पावर 3 by 2 का आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, 2 स्क्वायर पावर 3 by 2 8 आ जाएगा, और 8 माइनस 1 7, इस तरह से 14 by 3 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।